Good morning, student. Welcome you all. So today we are going to discuss the chapter number 4, part 2 from the book First Flight, which is titled as From the Diary of Anne Frank. So before begin the chapter, let us quickly discuss that what we have read in our previous part. So let's start from the Diary of Anne Frank. So this, as I already told you, this lesson is an excerpt from Diary of a Young Girl. Means a Diary of Young Girl एक book है, and that book was written by Anne Frank only, and this is the lesson. Means from the Diary of Anne Frank, the excerpt of the Diary of a Young Girl, and it is an autobiography. So as I already told you, this chapter is an autobiography that was first published in 1947. Means the Diary of a Young Girl was published in 1947, and it was an autobiography of Anne Frank. Alright, so in this Anne Frank expresses, means in this chapter Anne Frank expresses her thoughts in her diary, which was gifted to her on her 13th birthday, जो उनको कब मिली थी, उनके 13th birthday पर मिली थी. She named the diary Kitty. उन्होंने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था? Kitty, which she consider as her true friend, जैसे अब वो अपनी true friend कहती थी. And उन्होंने कहा था कि जो true friend है उनकी वो डायरी इसलिए because she doesn't have any true friend in her life. She mentioned in her diary, she mentioned lots of things like about her childhood, about her family and other things as well. So that she told no one else. Alright, so let's start the second part of this chapter, that is from the Diary of Anne Frank. So, since no one would, आप देखिएगा चैप्टर 2 और 3rd पेज पे आपको मिल जाएगा. So since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge. So here the word plunge means jump or dive quickly. किसी भी सिचुएशन पे बहुत जल्दी रिएक्ट करना उसे प्लंज कहते हैं. ऑलराइट, so since no one would understand a word of my story to Kitty if I were to plunge right in. मीन्स अब वो कह रही हैं कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता उनकी डायरी को पढ़ने में. वो जो क्या थी, किटी को पढ़ने में नो वन वुड इंटरेस्टेड बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा जो भी प्लंजेस थे, मीन्स जो क्विकली डाइव करना था वो नहीं किए थे. आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो. ये कह रही है कि मैं बहुत अच्छे से मेरी लाइफ को डिस्क्राइब कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी. ऑलराइट, सो माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. तो यहाँ पे अपने फादर के बारे में कह रही है कि जो मेरे फादर थे बहुत एडोरेबल फादर थे, जितने मैंने अभी तक फादर्स देखे हैं. डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25. तो हियर रिमेंबर दिस थिंग, हर फादर जब उन्होंने शादी की थी, her father was 36 and her mother was 25 when they got married to each other. Alright, so my sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. So her sister Margot, उनका बर्थ हुआ था जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट में, and in which year? 1926. So remember all the years. Alright, 1926 में इनकी सिस्टर का बर्थ हुआ था and her sister name is Margot. I was born on 12th June 1929 and she was born on which year? 1929. 12th June 1929. So the difference between these two 3 years का difference है इनकी सिस्टर में और इनमें, because इनकी सिस्टर 1926 में इनका बर्थ हुआ था और इनका खुद का हुआ था 1929 में. I lived in Frankfurt until I was 4. So ये फ्रैंकफर्ट में कब तक रही थी? जब तक ये 4 years की थी. My father emigrated. Emigrated means transfer, एक जगह से दूसरी जगह जाना. ठीक है, टू हॉलैंड इन 1933. तो इनके जो फादर थे वो एमिग्रेट हो गए थे कहाँ पे?
हॉलैंड में. In which year? In 1933 में. Okay. And my mother added Hollander flan. So here her mother name is Edith Hollander Frank. So remember, her sister name is Margot, her father name is Ott Frank, and her mother name is Edith Frank, and her name is Anne Frank. Alright, so remember all the names. Went with him to Holland in September. So her mother and her father, वो कहाँ पे हॉलैंड गए थे, किस ईयर में? सितंबर में. उनकी जो मदर थी वो उनके फादर के पास चली गई थी इन सितंबर मंथ. While Margot and I were sent to the Aachen. So Aachen is a city in German. जो Aachen है वो क्या है? एक सिटी है जो जर्मन में है. To stay with our grandmother. So while Margot और इनको कहाँ भेज गया था? अपनी ग्रैंडमदर के घर रहने के लिए, जो कहाँ पे है? जर्मनी में, Aachen में. Alright, so Margot went to Holland in December and I followed in February. So Margot कब गई हॉलैंड पे? दिसंबर को वो अपने पेरेंट्स के पास चली गई थी. एंड आई फॉलोड इन फरवरी. बट यहाँ पे जो एन फ्रैंक है वो कब गई वहाँ पर हॉलैंड में? इन फरवरी मंथ. सो व्हेन आई वाज प्लंक्ड, सो हियर द वर्ड प्लंक्ड मीन्स पुट डाउन इन अ कैजुअल वे. अब पुट डाउन इन अ कैजुअल वे का मतलब यहाँ पे क्या है? डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट. सो उनको ऐसे रख दिया गया जैसे एक बर्थडे प्रेजेंट हो फॉर हर सिस्टर, मीन्स फॉर मार्गॉट. So I started right away at the Montessori nursery school. So Montessori means क्या होता है? Education that involves free activity within a prepared environment. एक ऐसी education जो आपको free provide हो रही हो और एक pre-prepared environment मिल रहा हो. मतलब हर चीज़ आपका सारी facilities you got there. So इन्होंने मीन्स जो एन फ्रैंक थे उन्होंने अपनी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल स्टार्ट करी थी. आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6. मीन्स एन फ्रैंक स्टेड देयर जब तक वो कितने ईयर्स की थी? 6 years old. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. सो हेयर अब यहाँ पे हम जैसे हम कहते हैं क्लासेस को फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, तो ये लोग क्या कहते थे? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. लाइक इस तरीके से ये अपनी क्लास को एड्रेस करते थे. ऑलराइट, सो इन द 6th form my teacher was Mrs. Cupress. So 6th form में इनकी टीचर का नाम क्या था? देखिए आपको सारे नेम्स एंड डेट्स आपको याद रखने होंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन इन्हीं पे इस पे ज़्यादा बेस्ड हो सकते हैं. ऑलराइट, सो द हेड मिस्ट्रेस. सो मिसेस क्यूप्रेस जो थी, जो उनकी हेड मिस्ट्रेस थी, 6th form में उनकी टीचर थी वो. एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड a heartbreaking farewell. अब क्या था? फर्स्ट फॉर्म टू 6th form मीन्स फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म टू 6th form ये सेम मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में थी. अब यहाँ पे उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी एंड हर नेम इज मिसेस क्यूप्रेस. जब उनका फेयरवेल था तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल था और ज़्यादा मतलब सब लोग टीयर्स में थे क्योंकि उनका मतलब वो एंड था उस स्कूल में. राइट, सो इन द समर ऑफ 1941 grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. So here in 1941 में जो एन फ्रैंक के ग्रैंडमदर थे, she fall ill, that's why उनका एक ऑपरेशन हुआ एंड जो बर्थडे सेलिब्रेशन था एन फ्रैंक का वो बहुत छोटा सेलिब्रेशन हो गया क्योंकि उनकी जो ग्रैंडमदर थे वो इल. ऑलराइट, सो ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. सो ग्रैंडमा का जो डेथ था वो कब हुआ था? 1942 में. ऑलराइट, सो नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. मीन्स कोई भी नहीं जानता था कि वो ऑब्वियसली उनकी ग्रैंडमदर थी तो उनका जो अटैचमेंट था, वो उनका जो बॉन्ड था, दैट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. And this birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. Means अब जो उनका birthday celebration था वो कुछ इस तरीके से था. एक तो grandma का जो भी spiritual और जो rituals हम follow करते हैं वो सब भी हो जाए, and apart from them एक candle भी lit उनके उस birthday पर करी थी. तो it was a quite little celebration. Alright, so the four of us means the four of us, her parents means both father and mother and her sister are still doing well, अच्छे से कर रहे थे. And that brings me to the present date of 20th June 1942.
1942 मीन्स आपको कौन सी डेट के बारे में बात करें 20 जून 1942 का एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। अब यहाँ पे वो अपना डेडिकेशन शो कर रही हैं थ्रू हर डायरी। तो हियर द वर्ड सोलम मीन्स फॉर्मल और डिग्निफाइड मीन्स अब बहुत रिस्पेक्टफुली और डिग्निफाइड वे में वो अपना डायरी राइटिंग स्टार्ट करेंगी। सो टिल हियर यहाँ तक उन्होंने क्या बताया कि जब डायरी स्टार्ट करी तो कैसे कैसे उन्होंने स्टार्ट करी, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी। अब इसके बाद से अब वो स्टार्ट कर रही हैं एक रिस्पेक्ट वे में, एक डेडिकेशन वे में, एक फॉर्मल और डिग्निफाइड वे में शी स्टार्ट हर राइटिंग द डायरी। सो नाउ अब जब भी हम एक डायरी स्टार्ट करते हैं तो यूजुअली क्या कहते हैं, हमारा होता है कि डियर डायरी और जो भी अगर नेम देते हैं हम तो अब यहाँ पे जो एन फ्रैंक है उन्होंने नेम दिया अपनी डायरी को डियरेस्ट किटी मीन्स तो लव जो था वो बहुत हाई लेवल पर था, तो उन्होंने यहाँ पे डियरेस्ट किटी लिखा एंड डेट वॉज सैटरडे 20 जून 1942 पे उन्होंने अपनी डायरी राइटिंग स्टार्ट करी थी। ऑलराइट, सो she started writing, our entire class is quaking in its boots. So here the word quaking in its boots means shaking with fear and nervousness, means all the class, means all the classes and all the girls and boys were shaking with fear and nervousness. सबको डर लग रहा था। अब ये अपनी क्लास के बारे में बता रही हैं कि जब वो अपनी क्लास में थी, अपना क्लासरूम था, स्कूल में थी, तब कैसा था। The reason of course is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will be moved up to the next form and who will be kept back. Means अब एक हार्ट ब्रेकिंग चीज़ थी, जो रीज़न था क्वेकिंग ऑफ इट इन इट्स बूट्स मीन्स सब लोग शिवर कर रहे थे, पैर कांप रहे थे सब लोगों के, बिकॉज अब जो मीटिंग होने वाली थी टीचर्स की एंड दे डिसाइड कि कौन नेक्स्ट फॉर्म में मीन्स नेक्स्ट सेशन में जाएगा और कौन सेम क्लास में या सेम फॉर्म में रहेगा। ऑलराइट, ऑफ कोर्स जब आपका भी डिसीजन होता है, रिजल्ट टाइम होता है, तो हम लोग सब डर जाते हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे एन की और उसके क्लासमेट्स की थी। ऑलराइट, सो हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, जीएन एंड आई। सो जीएन जो एन फ्रैंक है उनकी फ्रेंड है, सो ये कह रहे हैं कि हाफ द क्लास को क्या लगा चुकी थी, बेट लगा चुकी थी। तो जीएन और आई लाफ आउटसाइडली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। मीन्स अब जो जीएन है, जीएन मीन्स एन फ्रैंक फ्रेंड और एन फ्रैंक खुद, वो दोनों हंस रही थी क्योंकि जो बॉयज उनके पीछे बैठे थे सीएन और जैक्स, बॉयज का नेम क्या था, सीएन एंड जैक्स, वो क्या कर रहे थे, वो बेट लगा रहे थे। ठीक है, सीएन एंड जैक्स who have staked their entire holiday saving on their bet. अब उन्होंने पूरी अपने हॉलीडेज किस में वेस्ट कर दी थी, बेट में वेस्ट कर दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास। अब मॉर्निंग टू नाइट में केवल यही डिस्कशन चलता था, दे वर डिस्कस्ड ओनली वन थिंग दैट यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। सो एज यूजुअल जैसे स्टूडेंट्स करते हैं कि नहीं नहीं यार तू तो पास हो जाएगा बट मैं नहीं होंगे, मेरा कोई श्योरिटी नहीं है। सो ये डिस्कशन वो सब वहाँ पे कर रहे थे। इवन जीएस प्लीडिंग, सो हियर द वर्ड प्लीडिंग मीन्स an expression or gesture that you want something very much, means plead करना, रिक्वेस्ट करना, कोई ऐसा gesture जो आपको किसी चीज़ को बहुत eagerly आपको चाहिए, उसके लिए जब आप प्लीड करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, so the pleading glances. Alright, so them down. If you ask me, there are so many dummies. So here the word dummies means a stupid person that about a quarter. Quarter means 1/4. Alright. 1/4 of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. So यहाँ पे वो डिस्कशन कर रहे थे कि मतलब might be जो 1/4 क्लास है means quarter of the class should be kept back, यहीं रह जाएंगी। and but यहाँ पे वो एक चीज़ और मेंशन करते हैं, but the teachers are the most unpredictable creatures on the earth. but जो टीचर्स हैं वो सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है, पता नहीं वो क्या कर देंगी नेक्स्ट, राइट। I am not so worried about my girlfriends and myself. So here the word I is referred to Anne Frank. So Anne Frank कह रही है कि I am not worried about myself
and my girlfriend. So here the word girlfriend means her friends. So we will make it. हम तो next form में transfer कर दिया जाएंगे, means हमें भेज दिया जाएगा next form में, because we are very intelligent. So the only subject I am not sure about it, math. So Anne Frank कह रही है कि मैं सिर्फ एक subject पे sure नहीं हूँ, that is math. Anyway, all we can do is wait. हम क्या कर सकते हैं, wait करेंगे. Until then we keep telling each other not to lose heart. और तब तक हम एक दूसरे को होप नहीं खोना है, not to lose heart, ये सब मतलब satisfied करते रहेंगे to each other. Alright, so I am not so worried about my girlfriends and myself. We will make it. I got along pretty well with my all teachers. Next paragraph से देखिएगा, वो same paragraph आ गया यहाँ पे. So I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. अभी कह रहे हैं कि मेरा जो कनेक्शन था मेरे टीचर्स से बहुत quite well था, and there are 9 of them, means there are 9 teachers, 7 men means 7 male teachers and the 2 female teachers were there. So Mr. Casing, the old foggy. So here the word foggy means an old-fashioned person. So एक टीचर था जिनके नाम थे उनका मिस्टर केसिंग, द ओल्ड फॉगी, हु टीचर्स मैथ. वो उनको क्या पढ़ाते थे, मैथ पढ़ाते थे. वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस. वो बहुत टाइम से किससे एनॉयड रहते थे, किससे गुस्सा रहते थे, एन से गुस्सा रहते थे. बिकॉज आई टॉक सो मच. बिकॉज जो एन है वो क्या करती थी, बहुत ज़्यादा बातें करती थी. दैट्स द मेन रीजन ही वॉज एनॉयड विद हर. After several warnings, he assigned me extra homework. पहले तो मिस्टर केसिंग ने क्या कहा, उनको बहुत सारे warnings दिए एन को कि तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो, चुप रहा करो. But after the warnings, he assigned me an extra homework. He gave her an extra homework. उसको क्या दे दिया गया, एक extra homework दे दिया गया. And what was that? So it was an essay on the subject a chatterbox. अब वो क्या था, एक ऐसे था, और जो सब्जेक्ट क्या था, टॉपिक क्या था ऐसे का, और चैटरबॉक्स. अब उनको एक ऐसे लिखने को दे दिया था एंड को, किस टॉपिक पे, चैटरबॉक्स टॉपिक पे. ऑलराइट, सो अभी ये फर्स्ट पार्ट मीन्स द पार्ट सेकेंड इज फिनिश्ड हियर. सो वी विल कंटिन्यू इट in our next class. Till then, take care yourself and thank you.